প্রবল উচ্ছ্বাস ও উদ্যমতা বিজেপি যুব মোর্চা কর্মীদের মধ্যে কেননা করিমগঞ্জে আয়োজন হলো আজ সদস্যতা অভিযান ও যুব সম্মেলন। স্থানীয় জেলা গ্রন্থাগার প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত কার্যক্রমে বিশেষভাবে আসন অলঙ্কিত করেন ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার সর্বভারতীয় সভানেত্রী নেহা যোশী, ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা আসাম প্রদেশ সভাপতি রাকেশ দাস প্রমুখ। বিজেপির সদস্যপদ বৃদ্ধি করতে এক কাজ করার আহ্বান জানানো হয়। সম্মেলনে দলীয় সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে আলোকপাত করা হয়। বিজেপি মিডিয়া প্যানেলিস্ট বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য, জেলা বিজেপির সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য কর্মী সহ জনতা যুব মোর্চা প্রত্যেক কর্মকর্তারা সামিল ছিলেন। भारत माता के भारत माता के युवा मोर्चा जिंदाबाद 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 युवा मोर्चा जिंदाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद 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 हमारा जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट प्रोग्राम जा रहे हैं गवर्नमेंट प्रोग्राम ওদিকে যাও কেন दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दन दीप हरतु मे पापं दीप ज्योति नमस्तुते शुभं करतु कल्याणम् आरोग्यं सुख सम्पदाः देशबुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योति नमस्तुते वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां शस्यश्यामलां मातरम् वन्दे शुभ्रजोत्स्ना पुलकित উপহার তুলে দেবেন। জেলা এবং বরাকবলি সফরে এসেছেন আর এই প্রথম ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার যুবকদেরকে নিয়ে যুব সম্মেলন আয়োজন করা হয়েছে। আর এই সভায় আপনারা সবাই উপস্থিত হয়েছেন। আমি যেখানে বুঝলাম আমাদের উচিত এবং আমাদের মিগুর বক্তব্য যে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার আজকের এই প্রোগ্রামের মূল উদ্দেশ্য হলো ভারতীয় জনতা পার্টির সদস্য ভর্তি অভিযানকে কেন্দ্র করে। তাই আজকের এখানে যারা উপস্থিত আছেন আমি সবার কাছে অনুরোধ করব যাতে আপনাদের যে টার্গেট আমাদের আসাম প্রদেশের সভাপতি যুব মোর্চার কার্যকর্তা ভাইদেরকে দিয়েছেন সদস্য ভর্তি অভিযানের জন্য আপনারা সবাই মন দিয়ে করবেন। কারণ
আপনারা জানেন ভারতীয় জনতা পার্টির সদস্য ভর্তি অভিযানকে আমাদের আসাম প্রদেশের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রতি সপ্তাহে একবার করে বিসি নিয়ে প্রতিটি সমষ্টি উনি খোঁজ খবর রাখছেন কোন সমষ্টিতে কিভাবে মেম্বারশিপ হচ্ছে, কিভাবে যুবক থেকে ধরে মা বোনরা থেকে ধরে পার্টি দলীয় কার্যকর্তারা কিভাবে সদস্য ভর্তি অভিযান পালন করছেন, তার জন্য প্রতি সপ্তাহে একদিন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার খবর নিচ্ছেন এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছেন। এবং আজকের দিনে যদি আমরা দেখি করিমগঞ্জ জেলা আসামের ভিতরে যে দুইটি জেলা, আমাদের এই জেলাতে যে দুইটি সমষ্টিতে বিধায়ক আছি, একটাতে আমাদের পাতারকান্দি কৃষ্ণেন্দ্র আছেন, একটাতে আমি বিধায়ক আছি। গতকালকে অবধি, গত পরশু অবধি আমি 10 নম্বরে ছিলাম, আজকে দেখেছি 11 নম্বরে এসেছে আমাদের রামকৃষ্ণনগর মেম্বারশিপ সদস্য ভর্তি অভিযানে, এবং পাতারকান্দি বুধ চাইলে আসছে আজকে। তাই এখানে যারা রামকৃষ্ণনগর, দুলভছড়া এবং ভৈরবনগর থেকে যারা যুব মোর্চার কার্যকর্তারা আছেন, আপনাদেরকে অনুরোধ করবো আপনারা যাতে এখান থেকে গিয়ে রাজেশ ভাইয়ের প্রোগ্রাম সেরে আপনারাও আরো কাজ করেন, কারণ আপনারা কাজ করছেন, ভালোভাবে কাজ করছেন। বিশেষ করে ভৈরবনগর, রামকৃষ্ণনগর এবং দুলভছড়ার যুব মোর্চার ভাইরা ঘুরে ঘুরে গিয়ে কাজ করছে। তাই আহ্বান করবো যে আজকের এই যে মিটিং, এই মিটিং এর সফলতা তখনই আসবে যখন আপনারা এখানে যারা বসে আছেন, আপনারা ভারতীয় জনতা পার্টি যুব মোর্চার যে দায়িত্ব আমাদের রাকেশ দাস যে টার্গেট আপনাদেরকে দিয়েছেন, এই টার্গেট যখন আপনারা ফুলফিল করতে পারবেন তখন এই আজকের এই প্রোগ্রামের সফলতা আসবে। আর আপনারা জানেন ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা, এই ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা আমাদের এই যে ভারতীয় জনতা পার্টির যে 8টা মোর্চা আছে, 8টা মোর্চার মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট মোর্চা হলো ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা। আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি আছিলেন ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার আমাদের উমা ভারতী, উনি একটা স্লোগান দিতেন, আবার ওনার একটা ডায়লগ ছিল যে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা, ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা হলো এই যে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির মেরুদণ্ড। কেন উনি মেরুদণ্ড বলতেন? বলতেন যে ভারতীয় জনতা পার্টির ডান্ডা যত সময় ডান্ডার সঙ্গে জড়িত করা যায় না, তত সময় ভারতীয় জনতা পার্টির ডান্ডা ওড়ে না। যখনই ভারতীয় জনতা পার্টির ডান্ডা আমরা যদি নর্মালি এই টেবিলে রাখি তাহলে এটা উঠবে না, আর যখনই আমরা ডান্ডাতে ঢুকিয়ে খাড়া করি তখন ভারতীয় জনতা পার্টির এই যে পতাকা উড়ে, ডান্ডা উড়ে। তাই উনি বলেছিলেন যে ভারতীয় জনতা পার্টি হলো প্যারেন্ট বডি হলো ডান্ডা, আর আমাদের যুব মোর্চা হলো ডান্ডা। কারণ ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা যতক্ষণই শক্তিশালী হবে, যত বেশি শক্তিশালী হবে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি এত বেশি শক্তিশালী হবে। আমরা যদি দেখি এবার এমপি ইলেকশনে করিমগঞ্জের মতন একটা মাইনাস সিট যদি আমরা জিততে সক্ষম হয়েছি, তাহলে যুব মোর্চার কার্যকর্তারা ভাই বন্ধুদের কারণে আমরা সক্ষম হয়েছি। কারণ আমরা জানি অনেক জায়গায় ভোট কাস্টিং এ অনেক পিছিয়ে ছিলাম আমরা, কিন্তু যুব মোর্চার ভাইরা সকাল থেকে বিকাল অবধি ভোট কিভাবে কাস্টিং করেছেন, আমরা যারা এই করিমগঞ্জ জেলায় যারা বিভিন্ন সমষ্টিতে বিভিন্নভাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন ওনারা জানেন। এই যুব মোর্চার কার্যকর্তারা যদি আপনারা সমষ্টিতে অ্যাক্টিভলি থাকতেন না, তাহলে এই করিমগঞ্জের মতন লোকসভা আমরা জিততে পারতাম না। यहाँ बैनर पर भी असमीज में लिखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है 2024 में। तो मैं आपको 2-3 बातें इसके बारे में बताऊंगी। भारतीय जनता पार्टी देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। आप सब ने सुना होगा, न्यूज में पढ़ा होगा, कहीं पर रेडियो में सुना होगा। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा राजनीतिक दल तो है ही, सबसे अलग राजनीतिक दल है, क्योंकि इसका कोई लाइफ टाइम मेंबर नहीं होता। माने नेहा जोशी भी लाइफ टाइम मेंबर नहीं होगी, सुवेंदु दास जी भी लाइफ टाइम मेंबर नहीं होंगे, नरेंद्र मोदी जी भी लाइफ टाइम मेंबर नहीं होंगे। हर 6 साल में भारतीय जनता पार्टी का फिर से मेंबरशिप लेना पड़ता है। कोई ऐसा पॉलिटिकल पार्टी आपने सुना है जहां पर ऐसा होता है? नहीं होता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसा पार्टी है जो विचारधारा पर आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद पर आधारित
आधारित पार्टी है, यही पार्टी है जिसका कार्यक्रम वंदे मातरम से शुरू होता है और जनगण मन से खत्म होता है। जब हम नारा देते हैं तो पार्टी का नारा से पहले भारत माता की जय का नारा देते हैं, वंदे मातरम का नारा देते हैं। और ये वो पार्टी है जो चाहती है कि हर 6 साल में अपने मेंबर को, अपने कार्यकर्ता को मौका देना कि आप एक बार दोबारा सोचिए, आप भारतीय जनता पार्टी में क्यों हैं, आप भारतीय जनता पार्टी का मेंबर क्यों बनना चाहते हैं। और यही बात मैं आज आप सबके साथ करने आई हूं। बहुत सुंदर वक्ता हमारे साथ हैं, कुछ लोगों ने बोला, कुछ अभी और भी बोलेंगे। अभी एमएलए साहब ने बहुत ऊर्जावान भाषण आपको दिया और बताया कि सदस्यता अभियान चल रहा है, युवा मोर्चा का क्या कार्य है। लेकिन इसमें सबसे जरूरी बात जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सदस्यता अभियान चला रही है, और असम प्रदेश के अंदर कल शाम तक 25 लाख लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली थी। असम अभी पूरे देश में टॉप 3 जो राज्य है उसमें आपका असम प्रदेश आता है, क्योंकि ये राष्ट्रवादी लोगों का प्रदेश है। और जिस धरती पर मैं आज खड़ी हूँ, यहाँ पे मंच पे ही मुझे पता चला, मैं अभी देख के आई वो मानेगढ़ में 1857 जहाँ म्यूटिनी का हमारे शहीद उनका जो मेमोरियल है, वहां पर भी मुझे आज जाने का मौका मिला। तो पता चला कि ये तो क्रांतिकारियों का भूमि में मैं खड़ी हूँ। और जब मैं क्रांतिकारियों की भूमि में खड़ी हूँ तो ऐसे लोग तो राष्ट्रवाद के प्रति, राष्ट्र सेवा के प्रति हमेशा ही समर्पित रहते हैं। और यही कारण है कि अभी जब भाई साहब बता रहे थे कि कितना मेंबरशिप यहाँ पर हो चुका है जिला में, मैं आज जो युवा लोग यहाँ पर बैठे हैं, खासकर युवा लोग, मैं भाषण बहुत लंबा नहीं दूंगी, मैं बस आपसे एक बात करने आई हूँ, आपके बहन के रूप में, दीदी के रूप में, कि हम आपको आज आमंत्रित किए कि आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने। युवा मोर्चा पूरा देश में बड़ा अभियान चला रहा है भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने, लेकिन हमें ऐसे सदस्य नहीं चाहिए जिनका आंख कान मुंह बंद हो। हमें ऐसे सदस्य नहीं चाहिए जो सोच ना सके, बोल ना सके, सिर्फ एक मिस्ड कॉल करे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से जब इस अभियान को नई दिल्ली से शुरू किया था तो कहा था कि जब हम किसी को सदस्यता दिलाएं तो ये चर्चा जरूर करें कि भारतीय जनता पार्टी का सदस्य आप बनने क्यों चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य आप बनेंगे, कुछ अच्छा लगेगा पार्टी के बारे में, तभी तो बनेंगे ना। तो मैं आप सबसे पहले तो ये पूछती हूँ कि कितने लोग अभी भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ले चुके हैं, एक बार हाथ उठा के मुझे बताएंगे जो ले चुके हैं। अच्छा, यहाँ तो 90% लोग ले चुके हैं। तो जो अभी नहीं ले चुके हैं और जो ले भी चुके हैं, ज्ञान तो सभी के लिए अच्छा होता है, थोड़ा चिंतन हमेशा हमें करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का पिछले 10 साल जो सरकार इस देश में चली है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आप उस सरकार का लेखा जोखा देखिए। भारतीय जनता पार्टी जो 80 के दशक से पार्टी शुरू हुई थी, छोटा सा पार्टी था, 2 सांसदों वाली पार्टी था। अभी बता रहे थे भाई साहब कैसे इसी आसाम में तो पार्टी का सृजन यहाँ करीमगंज से हुआ, और आज कैसे वो आसाम की सबसे बड़ी पार्टी और देश की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ज्यादा विधायक, सबसे ज्यादा सांसद, सबसे ज्यादा म्यूनिसिपल चेयरमैन, सबसे ज्यादा पार्षद, सबसे ज्यादा ग्राम प्रधान, सब देश में भारतीय जनता पार्टी का है। सबसे विस्तार जिस पार्टी का है वो हमारा है। लेकिन इस पार्टी ने कभी अपना आइडियोलॉजी नहीं बदला। होने के नाते मैं बोलता हूँ कि करीमगंज जैसे जिला में आके, इससे पहले मैं एक संगठन में था, वो छात्र संगठन था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, तब आते थे तो ये तामझाम नहीं मिलते थे। तो उस समय जब एक छात्र नेता के तहत आते थे करीमगंज में, तो जिला जिला में जाना, कैंपस में जाना, युवाओं के बीच में जाना और खासकर घरों में संपर्क करना हमेशा काम था। लेकिन पहली बार ऐसा अनुभव हुआ कि सदस्यता अभियान की इस कार्यक्रम के साथ साथ युवा मोर्चा के अध्यक्ष के नाते पहली बार यहाँ पे आना हुआ। सब लोगों ने स्वागत किया। सब लोगों ने जिन भी लोगों ने मुझे प्यार दिया है, सबको मेरे तरफ से नमन करता हूँ और सबको ये धन्यवाद करता हूँ। नेहा जी ने ऑलरेडी धन्यवाद कर लिया क्योंकि आप लोगों ने इतने धैर्य तरीके से इस कार्यक्रम को सफल करने में, क्योंकि मंच से बैठे हुए जितना भी बड़ा पदाधिकारी नहीं क्यों ना हो,
वो लोग कब सफल है जब मंच के सामने बैठे हुए लोग उनको सुनने के लिए तैयार होते हैं। और आप लोगों ने इतने सही तरीके से हमें सुनने के प्रयास किया, इस कार्यक्रम को सफल किया, इसलिए आप सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश के ही नहीं विश्व के सबसे बड़ा एक राजनीतिक संगठन है और उसके नाते हर 6 साल में हम मेंबरशिप करते हैं और हम कर रहे हैं पिछले 2 तारीख से लेके आने वाला 25 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्यता अभियान है वो सदस्यता अभियान हम हर देश के हर कोने में जाके, हर जिले में जाके, हर गांव में जाके हम ये सदस्यता अभियान कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि आने वाले समय में केवल राजनीतिक तरीके से नहीं, सामाजिक तरीके से भी भारतीय जनता पार्टी समाज में बहुत जरूरी है। वो बात हमें एहसास दिलाने के लिए, वो बात को एहसास करने के लिए मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो वर्ग जिसको समझना है कि आने वाले समय में राजनीतिक तहज है या राजनीतिक तरीके से हम किसको अपनाना है, किसको समाज में संरक्षित करना है, किसको समाज में मजबूत करना है, तो वो युवा वर्ग है। क्योंकि युवा वर्ग ही है जो आने वाले समय में देश की परिस्थिति को सुधार भी सकते हैं और देश की परिस्थिति को बिगाड़ भी सकते हैं। इसलिए मैं युवा मोर्चा के अध्यक्ष के नाते नहीं, एक युवा के नाते आप लोगों को आह्वान करता हूं कि आने वाले समय में राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, सामाजिक दृष्टिकोण से भी भारतीय जनता पार्टी को समाज के हर स्तर के, हर वर्ग में मजबूत होना जरूरी है। क्योंकि बहुत ऐसे राजनीतिक दल मिलते हैं जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए हमेशा जनता को प्रयोग करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है और उसमें ऐसा कार्यकर्ता काम करता है जो 80 के दशक में से अपने आप या अपने सामने पराजय को, अपने सामने हार को देखते हुए भी अपने आदर्श को लेके, अपने झंडा को लेके आगे जाने के लिए जो एक मानसिकता दिखाया था, वो मानसिकता के कारण ही 1980 में एक सपना पूरे देश भर में जागरूक हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी के नाम से एक संगठन आएगा, जो संगठन जाके आने वाले समय में भारत के लिए और भारत के समाज के लिए राजनीतिक तरीके से एक सबसे शक्तिशाली संगठन होंगे। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का 1980 के दशक में जो कार्यकर्ता ने सपना देखा था, हम समाज में जाएंगे, गांव-गांव में जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनाएंगे, वो 80 के दशक में सपना देखने वाले कार्यकर्ता का वो सपना था, वो सपना 2024 में हम देखते हैं। जब 2019 में भारतीय जनता पार्टी के नाते हम मेंबरशिप करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उस समय 18 करोड़ से अधिक मेंबरशिप हमारे सामने आते हैं। और जब 2024 में 2024 में भारतीय जनता पार्टी का ये सदस्यता अभियान में हम भागीदारी होते हैं, जब गांव-गांव में जाते हैं तो लोगों को बोलना नहीं पड़ रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता क्यों बनना है। जब एक युवाओं के बीच में हम ऐसे युवा मोर्चा जाते हैं तो उस समय उन लोगों को पता चलता है, खासकर बोला के युवाओं को, कि जो 2014 से पहले वाला देश, 2016 से पहले वाला आसाम का क्या हालत था। एक जमाने में आसाम में ऐसा भी एक परिस्थिति था कि कोई एक गरीब बच्चा कभी सपना नहीं देख सकता था कि वो सरकारी जॉब भी कर सकते हैं, एक भी पैसा ना देके वो सपना पूरा करने का काम वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सरकार ने किया है। कभी कोई लड़का सपना भी नहीं देख सकता था कि यूपीएससी के जैसा एक बड़ा शैक्षिक संस्थान से वो लोग एग्जाम देके कभी वीडियो भी बनेगा, एसडीसी भी बनेगा, एडीसी भी बनेगा। 2016 से पहले जो माहौल था वो माहौल खत्म करके आज एक नया आसाम, एक नया भारत जुड़ने जा रहा है। उस समय, आने वाले समय में जब आज हम देश की स्वाधीनता के 75वें वर्ष पूरा कर चुके हैं, लेकिन हमारे पास दायित्व है कि देश जब 100 वर्ष पूरा करेंगे, अपने स्वाधीनता का, अपने स्वतंत्रता का 100 वर्ष पूरा करेंगे, मुझे लगता है कि उस समय हमारे ऊपर एक दायित्व रहेगा कि आने वाले जनरेशन को हम देश को किस तरह से लेके जाएंगे। आज मोदी जी ने सपना देखा था 2014 में, गांधी जी बोल के गया था कि भारत को स्वस्थता रहना है। गांधी जी बार बार बोल के गया था कि भारत को स्वस्थ रखना है, लेकिन स्वस्थता रखने के कारण समाज के सभी वर्गों के बीच में मानसिकता बदलने का जो काम किया है, जब 2014 में मोदी जी आते हैं, मोदी जी आने के बाद उन्होंने बोला कि तुम लोगों को बोलने से पहले मैं खुद जानने के देश को साफ सुथरा करने में प्रयास में लग जाऊंगा। जो लड़का 2014 से पहले या जो लड़की 2014 से पहले झाड़ू पकड़ने के लिए शर्म करते थे, 2014 के बाद वही लड़का, वही युवा वर्ग अपने हाथ में झाड़ू लेके स्वच्छ भारत अभियान के नाम पे सेल्फी खींच के फेसबुक में देने के लिए भी एक शर्म नहीं करते। वो जो मानसिकता है, वो मानसिकता बदलने का काम वर्तमान के प्रधानमंत्री जी ने किया है।
2016 के